Hello friends, I welcome you again to Vamsi's Golden Series for IAS. If you can believe, you can start, but if you can understand, you can achieve. So this is the explanation of day 1 test. Hope you all have taken the test. There were 20 questions and you have 20 minutes to answer. This was the first question. Consider the following actions of RBI. Selling G-Secs in open market, increasing cash reserve ratio, giving loan to government. Which of the above is a part of contractionary monetary policy? Very simple question. What all you need to know is understanding the word contractionary monetary policy. Hope you know this. Contractionary monetary policy means tight money policy or dear money policy. That means RBI is taking money towards itself. That means the money supply in the economy decreases. That is called contractionary monetary policy. So selling G-Secs in open market. अगर RBI G-Secs को बेचता है open market में, then the money with public will go to RBI. So it is correct. Increasing cash reserve ratio. अगर CRR increase होता है, that is nothing but बैंक ज्यादा reserve रखना पड़ता है, then the money with the banks decreases. That is again called टाइट मनी पॉलिसी. गिविंग लोन टू गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट को लोन देता है इसका मतलब पैसा आरबीआई से बाहर चले गया, चाहे गवर्नमेंट कुछ और खरीदे. वी डोंट थिंक दैट वे. गवर्नमेंट के पास पैसा गया, दैट मीन्स इट विल बी स्पेंट फॉर पब्लिक एंड पब्लिक. और सिंपली याद रखना है, आरबीआई के पास पैसा आ रहा है, tight money policy. RBI से पैसा जा रहा है, that means loose money policy, right? So giving loan to government is reverse. So it cannot be. So the answer is 1 and 2 only. Hope you are understanding. Otherwise refer to the, means if you are not understanding this kind of terminology, that means आपने वीडियो सही तरीका से नहीं देखा. If you would have seen it properly, this is very easy question. Second question was, consider the following statements. The MSF rate is generally lower than that of repo rate. क्यों? MSF rate means marginal standing facility rate. वे तब मिलता है जब आपके पास रेपो रेट के थ्रू लोन लेने के लिए सिक्योरिटीज बचा नहीं बैंक के पास, देन यू नो सम पार्ट ऑफ एनडीटी जो एसएलआर का सिक्योरिटीज यूज करके एमएसएफ रेट पे लोन लेके आएगा, तब और ज्यादा कॉस्टली होता है वे. सो एमएसएफ रेट इज लोअर देन दैट ऑफ रेपो रेट. रॉन्ग है, राइट? इट्स ए डायरेक्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज रॉन्ग. Second, the amount of money that can be borrowed under MSF is linked to NDTL of that bank. Yes, ऐसा नहीं अपना मर्जी से ले नहीं सकते हैं. So NDTL में maybe 1% at present, it may vary also. So NDTL में कुछ percentage only of that securities only can be kept and loan can be taken. So second is correct. So first is wrong, second is correct. Which of the statements above is are correct? So 2 only is correct. This is also a very easy question. If you just understand the basic monetary policy topic, both these questions can be answered. Third question was, consider the following statements. Wetland International is a special agency of United Nations. Simple. Wetland International was an NGO. It is an NGO. You remember, we have seen wetlands mein. Wetland International is an NGO. So it is wrong. It is not a special agency of United Nations. Wetland International identifies wetlands for the list of wetlands of international importance. Wetlands of international importance means रामसार लिस्ट. रामसार लिस्ट का wetlands को wetland international क्यों आइडेंटिफाई करेगी? हर नेशन, every country itself will identify. Wetland International just an NGO. It go into field work and it will go meet the people and create awareness and work. So ये भी गलत है. 51 sites from India are included into the list of wetlands of international importance. No, 26 are into Ramsar list from India. 51 number क्या है? These are the list number of sites into Montreux record in the world, if you remember. So third is also wrong. All were wrong. Are you getting me? Very easy questions come in the exam like this, but he tried to confuse you with the statement. That's why I am making such questions to you, so that you will practice the right flavor. Unfortunately, what is available in the market, they are
very very fact based questions. Such questions will not come in the exam में actually questions आते हैं आसान है, but still you have to be careful while reading the statements. That is what you have to practice. A difficult question of IAS is not difficult because of lot of deep knowledge. It is difficult because of the way the statement is formed. That is what I am trying to make you practice. Got this? Question number 4. Again direct question. You have to match these. Kolleru Lake. Kolleru Lake is largest freshwater lake, if you remember. Sambar Lake is largest inland. Inland में largest है वे. Out of the options देखिए. Vembanad Col is the longest lake. बहुत लंबा है. That's why National Waterway 3 इसके थ्रू भी जाता है. चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लेक. चाहे कोस्टल लेक है या वेटलैंड लेक, इनलैंड लेक है, ओवरऑल में चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लेक. You know these things, right? So 1 will go with B and 1 will go with B means this is wrong. This is wrong. Then 2 will go with D. That means both are okay. Then 3 will go with A. So this is also wrong. So आपका आंसर हो गया D. Are you getting very very easy questions? I am not giving difficult questions. Solvable, all questions can be solved, but you have to keep your mind present. That is what is actual UPSC exam also. If you believe me, 80 plus questions आराम से हंसते हंसते आंसर कर सकते हैं. But unfortunately, people की बातों में आके आप बोलते हैं ना 40 क्वेश्चन से नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? कौन सी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? लास्ट ईयर का पेपर देख के निकाल के देखिए, 2015 का देखिए. Silly questions come in the exam. It's only your psychological feeling. Fifth question. Consider the following statements. Coral reefs are found only in tropics between 30 degree north and 30 degree south. See what we have seen the statement. Coral reefs are mostly found in tropics. That means they are more in tropics, but they are found only in tropics. Extreme. का मतलब ट्रॉपिक्स के अलावा कहीं नहीं होगा. दिस इज रॉन्ग. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? द मैंग्रोव कवर इज मोर एट हायर आल्टीट्यूड्स कंपेयर टू लोअर आल्टीट्यूड्स. नो, लोअर आल्टीट्यूड मींस ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स में ही ज्यादा है मैंग्रोव्स भी. ये भी देखा ना, 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ के बीच में मैंग्रोव्स आर मोस्टली देयर. सो इट इज आल्सो रॉन्ग. हायर लैटिट्यूड्स में ज्यादा है, लोअर लैटिट्यूड्स में नहीं है. लोअर लैटिट्यूड्स में ज्यादा है. सो बोथ आर रॉन्ग. Are you getting me? Neither 1 nor 2. मैं मोस्टली गलत दिया है स्टेटमेंट्स, तो सो दैट आप पहचान पाएंगे कैसा गलत बनाता है क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को. You understand this? Next, 6th question. Consider the following statements. Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS has 7 satellites. सही है, 7 satellites है उसमें. 3 of which are in geosynchronous orbit and 4 are in geostationary orbit. इतना क्लोज स्टेटमेंट्स देता नहीं एग्जाम में, रेयर केस में आता है, बट आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने दिया है. 7 सैटेलाइट्स है, सही है, लेकिन याद रखना उनमें से 3 जियो स्टेशनरी में है, इक्वेटर के ऊपर. अगर आपको ये स्लाइड याद होगा तो अर्थ पे दिस इज इक्वेटर. यहां हमने देखा 3 1 2 3 एंड आपको समझाने को ऐसा एक फिगर बनाया, 8 जैसा 2 फिगर्स बनाया, इस पे 2 इस पे 2 देखा. सो 3 are in geostationary, 4 are in geosynchronous. इस स्टेटमेंट में उल्टा दिया है. दैट मीन्स ये गलत है. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. दो इतना क्लोज गलत स्टेटमेंट जनरली आने का चांस कम है एग्जाम में, बट आप समझ रहे हैं ना, 3 जियोस्टेशनरी है, 4 सिंक्रोनस है. And second statement, India is the 4th country after Russia, USA and Europe to have its own navigation system. ये भी क्लोजली गलत किया है मैंने, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. इंडिया इज द 5th कंट्री. यू रिमेंबर, यूएसए का नवस्टार जीपीएस है, यूरोप का गैलीलियो है, रशिया का क्या है, रशिया का ग्लोनास है, और चाइना का बीडो, जिसको कंपास नाम चेंज करेंगे, वीडियो में बताया था. सो आई मिस्ड दैट. सो इंडिया इज नॉट द 4th कंट्री, इंडिया इज द 5th कंट्री टू हैव इट्स ओन नेविगेशन सिस्टम. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो अगेन neither 1 nor 2 इज करेक्ट. गेटिंग मी? वेरी इजी क्वेश्चन. अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए बस. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स.
स्पेस स्टेशन दिया है कॉलम ए में, कॉलम बी में कंट्री दिया है, आपने मैच करना है। मैं इंटेंशनली एक क्वेश्चन दिया हूं टेस्ट में जो मैंने इंटेंशनली पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि हर चीज हम क्यों पढ़ेंगे, हमको जो चाहिए वही पढ़ेंगे। लेकिन अगर वे नहीं चाहिए तो मैंने एग्जाम में क्यों दिया, आपको यह समझाने को दिया है। आप जितना भी पढ़ो, मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं कम पढ़े, लेकिन हम 80 से 90 क्वेश्चंस आंसर कर पाए एग्जाम में। तब भी 10 क्वेश्चंस विल कम विच आर नॉनसेंस। The reason of asking those 10 questions is not to test whether you can answer or not. It is to test whether you can identify such questions and skip them or not. The idea of those asking those questions is to skip. You need to learn to skip such questions. There will not be more. Hardly there will be 10 questions. But you need to save your time by skipping those questions. It is also an art that will be tested in the exam. ऐसा नहीं ग्रीडी बन के 1 by 1 जैसा आप ग्रेजुएशन में एग्जाम में लिखता है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, उसी ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे, आप परेशान में पड़ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं सी, अगर कोई आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, कोई बात नहीं, हम पकड़ के थोड़ा थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई बुलेट से शूट कर रहा है, हम उसको कैच करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, हम बिना पीछे देख के भागना चाहिए। सो ऐसा क्वेश्चन आता है, यू शुड नो टू स्किप, अदरवाइज तो बड़ी बात नहीं है पढ़ाने में। ऐसा पढ़ाते जाएंगे तो लिमिट ही नहीं है ना, क्यों सीखेंगे हम ये सारे, आज की बात नहीं। बस बट इतना तो आप जानते हैं, टियांगोंग करंट में है। अभी 2016 में अक्टूबर में चाइना का एक स्पेस स्टेशन था वे टियांगोंग, याद है आपको, जो 2 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में अक्टूबर 2016 में स्पेंड करके आया। सो थर्ड इज करेक्टली मैच्ड, सो आई कैन एलिमिनेट ये, दैट्स इट। समटाइम्स लकीली, इतना भी पता होगा तो लकीली आपको 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकता है, तब आप आंसर कर सकते हैं। या कभी कभी 2 एलिमिनेट होता है, देन 2 बचता है, देन आपका मर्जी है वेदर टू टेक रिस्क और नॉट टू टेक। राउंड 1 में आई प्रेफर नॉट टू टेक, स्किप करके आगे बढ़िए। आपको जरूर 60 बहुत सिली क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज ऑल क्वेश्चंस कैन नॉट बी लाइक दिस, आई एम टेलिंग यू। Though some people say that UPSC is very difficult and very unpredictable, all questions will be like this only, but I do not accept 80 questions you can easily answer. Out of them 60 questions बहुत ही सिली क्वेश्चंस होंगे। आपको इसलिए नहीं समझ में आएगा ये सिली है, क्योंकि आप सही इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ के जाते हैं। अब बकवास सब दिमाग में रख के जाता है, जो पढ़ना है वे स्किप करके जाता है, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड। नोबडी देयर टू गाइड यू प्रॉपरली, दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकंड है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान है, लेकिन आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे। अदरवाइज तो मुझे पता है 80 क्वेश्चंस आप आंख को बंद करके हंसते हंसते आंसर कर सकता है। I prefer to leave these kind of questions. Otherwise, Salyut was the first space station of Russia. हम जानते हैं ISS. ISS, of course, it is International Space Station. बहुत सारे countries, 15 countries मिलके इसको बनाया है, वे अलग बात है। But ISS is not the only space station, and in fact, it is not the first space station. वे तो 1998 में शुरू हुआ, right? याद है आपको, 1998 में रशिया ने पहले पीस लेके गया, बट 70s में ही रशिया ने सैल्यूट में गया है। इट वाज वेरी ओल्ड, सो सैल्यूट रशिया का स्पेस स्टेशन है। ISS इनफैक्ट 9th स्पेस स्टेशन, बट आई डोंट रिकमेंड यू टू रिमेंबर ऑल दिस, बिकॉज हम क्यों याद रखेंगे सब, हम पागल थोड़ी है हर चीज पता करने का। हमने IAS ऑफिसर बनने का जो जरूरत है वही समझेंगे। सो आई डोंट रिकमेंड, बट आपका मर्जी, जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। सैल्यूट रशिया का सही है, स्काईलैब यूरोप का नहीं है, स्काईलैब USA का है। आपने सुना होगा स्काईलैब, बचपन में बोलते रहते हैं, मैं तो सुना था बचपन में। स्काईलैब USA का स्पेस स्टेशन है। एंड तियांगोंग वाज इनटू न्यूज, इट इज चाइना का रिसेंट है। सो सेकंड वाज रॉन्गली मैच्ड, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्टली मैच्ड, सो आंसर इज सी। इतना परेशान होने से इस क्वेश्चन को, 1-2 क्वेश्चन स्किप होने में कोई नुकसान नहीं रहा है आपको, आप ये बात समझ लीजिए। यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, डोंट ट्राई टू बी वेरी ग्रीडी, डोंट से सच स्टेटमेंट्स दैट मैं 100 आउट ऑफ 100 आंसर करूंगा, मुझे 400 चाहिए दोनों पेपर मिला के। ऐसा बात तो मत करने, हमको नहीं चाहिए। हमने एग्जाम अच्छी मार्जिन से क्लियर करना है एंड हमने टॉप 10 में रैंक लेके आना है, ये टारगेट है आपका। Next question. Consider the following actions of the central government. Disinvestment in PSUs,
गिविंग लोन्स टू, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन समझ में आएगा, देन आई कैन केयरफुली आइडेंटिफाई दीज स्टेटमेंट्स. डोंट रीड दीज स्टेटमेंट्स एंड वेस्ट योर टाइम. फर्स्ट सी व्हाट ही इज आस्किंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी इंक्लूडेड है? कैपिटल अकाउंट मींस, मैंने बताया कैपिटल मींस व्हाट, उसका इंपैक्ट कल भी रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा. इसमें दो चीज है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. दैट मींस लायबिलिटी में चेंज आएगा, सिमिलरली एसेट में चेंज आएगा, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट. वे एक्सपेंडिचर और इनकम नहीं पूछ रहा है, सिर्फ अकाउंट पूछ रहा है, चाहे तो इनकम या चाहे तो एक्सपेंडिचर, डजंट मैटर, कैपिटल में होना चाहिए. कैपिटल मींस लायबिलिटी एंड एसेट पे इंपैक्ट होना चाहिए. नाउ यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज. अगर पीएसयूज में डिसइन्वेस्ट करता है, दैट मींस आपका एसेट कम हो गया, दैट मींस कैपिटल. गिविंग लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन देता है वापस भी मिलेगा, दैट मींस ये आपका एसेट हो गया, मतलब आपने किसी को दिया है वापस भी आएगा, आपका सेविंग्स हो गया, दैट मींस इट इज आल्सो कैपिटल. अगर ग्रांट देता है तो वे खर्च हो गया, वे वापस नहीं आएगा, देन इट वोंट कम अंडर कैपिटल, इट गो इनटू रेवेन्यू अकाउंट. नाउ पेइंग इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स, अगर इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट इज लाइक एक्सपेंस, अब लोन वापस नहीं दे रहे हैं, अगर लोन वापस देंगे तो आपका लायबिलिटी कम हो जाएगा, इंटरेस्ट पे करेगा तो लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन आपका पैसा खर्च हो गया, सो इट वोंट कम अंडर कैपिटल. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दैट मींस यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियोस केयरफुली, आपको दोबारा देखने की जरूरत है. नो नीड टू सी ऑल वीडियोस अगेन, एटलीस्ट समरी लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा आपको. सो हियर आंसर इज 1 and 2 only. Very silly question again. Next question, consider the following statements. There are no mangrove forests in Andaman and Nicobar Islands. There are no mangrove forests in Andaman and Nicobar. क्यों? बारातंग आइलैंड है ना, याद है आपको बारातंग? इनफैक्ट ये बड़ा है बहुत. आफ्टर बंगाल सुंदरबंस एंड आफ्टर गुजरात, देन अंडमान में बहुत ज्यादा मैंग्रोव्स है, बारातंग. So there are no coral reefs in Odisha state. ये सही है. You see, ईस्टर्न कोस्ट में बिटवीन चेन्नई एंड बंगाल यू डोंट फाइंड कोरल रीफ्स. हमने ये भी क्लियरली देखा है, बिकॉज कोरल रीफ्स के लिए एक रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड एक रेंज ऑफ सैलिनिटी होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द मोस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड द फ्रेश वाटर कैरीड बाय दीज रिवर्स, बिकॉज ऑफ दोज यू डोंट फाइंड कोरल रीफ्स. आपको साउथ में ओनली ईस्टर्न कोस्ट में आपको कोरल रीफ सिर्फ आपको अंडमान में दिखेगा, एंड यू फाइंड इन गल्फ ऑफ मन्नार. अदर देन दैट यू डोंट फाइंड एनी कोरल रीफ्स. वेस्ट में मिलेगा आपको, वेस्टर्न कोस्ट में, लाइक यू फाइंड नॉट ओनली इन गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, इवन बीच में बहुत सारे हैं आपको छोटा छोटा. आर यू गेटिंग मी? सो ओडिशा में कोई कोरल रीफ्स नहीं है. सो दिस इज ए सही स्टेटमेंट. ये मत सोचना ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. अगर एक्सट्रीम लिखना होता ना, इसको मैं लिखूंगा देयर आर नो कोरल रीफ्स इन ओडिशा, इन ओडिशा स्टेट देयर आर नो कोरल रीफ्स एट ऑल, ऐसा लिखूंगा मैं. उसको एक पंच देना चाहता हूं, गलत वाला पंच, ऐसा लिखूंगा. सो देयर आर नो कोरल रीफ्स इन ओडिशा, इसमें कोई एक्सट्रीमिटी नहीं है. यस, देयर आर नो कोरल रीफ्स इन ओडिशा स्टेट, सही है. सो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग. बट अगेन इसमें ट्रैप है. आपको लगेगा, इतना बताने के बाद भी आपको लगेगा सेकंड करेक्ट है, सो आप बी पे जाएंगे. बट यू अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? सो सेकंड इज करेक्ट, first is incorrect, so my answer is not B, my answer is A. You have to be very careful. I don't say बार बार ऐसा ट्रैप करेगा. एक दो क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट नॉट करेक्ट भी पूछ सकता है, मे बी नॉट इन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, बट मैचिंग्स में पूछ सकता है. विच ऑफ द अबव आर इनकरेक्टली मैच्ड, इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू करेक्टली मैच्ड. सो बी केयरफुल. यू कैन बी केयरफुल इफ यू आर कूल. अगर आपको आप परेशान है एग्जाम हॉल में, आप कैसा केयरफुल रह सकता है? Are you getting me? So that's why I request you to be cool, because this exam is very very easy exam. In fact, if you ask me, this is the easiest exam. You need to understand that fact. लोग परेशान है, इसको फायदा आप उठा सकते हैं. Next question, 10th question. Consider the following statements. Gagan, you know Gagan, GPS aided geo augmented navigation, operates through 3 satellites. Yes, it operates through 3 satellites. GSAT 8, 10, 15. See, अगर आपको ये नंबर्स याद भी नहीं होता ना, ऐसा नंबर्स में गलत दे के आपको गलत नहीं देगा, ये टू मच है. GSAT 8 के जगह 9 दे के, ऑफ कोर्स 9 अभी ये है जो रिसेंटली 2 दिन पहले अभी गया ना साउथ एशिया सैटेलाइट, बट ऐसा दे के गलत नहीं देगा.
Are you getting? You will get with some practice. After 4-5 tests, you automatically understand. This is a correct statement. It operates through 3 satellites. ये नाम गलत दे के इतना ऐसा नहीं करेगा. अगर मुझे नंबर से याद भी नहीं होगा तो I can confidently with gut feeling I can take it correct. It is a joint development of ISRO and DRDO. No, it is not joint development of DRDO. It is with Airport Authority of India because there is nothing to do with military. It is to do with Air Force. एयरलाइन लैंडिंग के लिए उसके लिए बनाया है, अगर आपको याद है तो, प्रिसाइज लैंडिंग. सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. थर्ड, India is the 5th country to have interoperable satellite based augmentation system after US, Europe, Japan and China. मैं इतना डिफिकल्ट भी आपको एग्जाम में आता नहीं जनरली, मैं इसको भी गलत बनाया है इंटेंशनली. सो ये अगर देखेंगे, इंडिया इज द 4th कंट्री आफ्टर यूएस, यूरोप एंड जापान, नॉट चाइना. चाइना के पास भी नहीं है. इनफैक्ट हम ये भी देखा इक्वेटोरियल कंट्रीज में फर्स्ट है एंड जापान को जरूरत है बिकॉज ऑफ देयर रीजन, उसकी डिफिकल्ट है उस टेरेन के लिए, टेरिटरी के लिए. देन यूएस एंड यूरोप, जापान के बाद इट इज ए 4th कंट्री. यू रेफर द वीडियो. सो दिस इज ये भी गलत है. सो यहाँ ओनली 1 इज करेक्ट. सो 1 ओनली इज करेक्ट, राइट. नेक्स्ट 11th स्टेटमेंट, sorry 11th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग GSLV MK3 Mark 3. इफ यू रिमेंबर, हम देखा है मार्क 1 रशिया से लिया है हमने, मार्क 2 हम खुद डेवलप किया है. बिटवीन 2000 एंड 2500 केजीज की सैटेलाइट्स पेलोड लेके जाएगी अब जो चल रहा है. एंड मार्क 3 हम टेस्ट किया है, स्टिल टू लॉन्च, एंड मार्क 3 विल टेक अप टू 4500 kg. दिस इज व्हाट वी हैव सीन इफ यू रेफर द वीडियो. सो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टेज विच इज क्रायोजेनिक. ये भी गलत है. सिंगल स्टेज क्यों? GSLV सारे मार्क, चाहे मार्क 1 है या मार्क 2 है या मार्क 3 है, दे कंटेन 3 स्टेजेस: solid, liquid and cryogenic. You remember, first is solid, then second stage is liquid and third stage is cryogenic. It's not only one stage that is cryogenic. And second statement, it can carry payload even up to 10,000 kg. ये क्लियरली वैसा ही टॉन्ट मार रहा है, दिख रहा है. अगर 10,000 सही भी होता है ना, इट कैन कैरी पेलोड्स अप टू 10,000 kg लिखना चाहिए. इट कैन कैरी पेलोड्स इवन अप टू 10,000 kg. क्लियरली मुझे गलत दिख रहा है. अदरवाइज आल्सो वेरी सिंपल, 4,000 टू 4,500 kg का पेलोड ले सकता है वे. सो 10,000 इज टू मच. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. सो डी द आंसर. होप यू अंडरस्टैंड दिस. Next question, 12th one. Consider the following statements regarding INSAT 3DR which was in news recently. You remember INSAT 3DR हमने launch किया recently. So first statement, INSAT 3DR is an advanced weather satellite weighing 2211 kg. Yes, INSAT series satellites weather satellites है and इसी ये सारे याद रख के आंसर नहीं करेंगे. वैसा तो न्यूज में है, करंट में हम देखा भी है. अदरवाइज सिंपली देखे, जनरली हम इनसैट या जीसैट सैटेलाइट्स को हम नहीं लॉन्च करते क्योंकि जनरली दे वे मोर देन 2000 kg, दे हैव ह्यूज वेट्स. तो हमने उसको कवरों से लॉन्च करते हैं एयरन के थ्रू. बट दिस इज द ओनली सैटेलाइट ड्यूरिंग रिसेंट टाइम, लाइक पहले चलो MK1 याद है आपको, मार्क 1 के थ्रू रशिया से हमने कुछ लॉन्च किया है. बट मार्क 2 जो हम इंडिजिनियसली टेस्टेड है, उसके साथ जो लास्ट 2016 की बात करेंगे तो होल ईयर में हम सिर्फ ये सैटेलाइट को लॉन्च किया है विथ आवर ओन लॉन्च व्हीकल. So that's why I asked you to remember this also. So INSAT 3DR was launched by our GSLV Mark 2. That's why second statement can be eliminated, right? Second statement is wrong. It is launched by Ariane 5. इसलिए दिया है. जनरली INSAT देख के आपको लग सकता है Ariane करेक्ट है, बट INSAT 3DR वैसा ही नाम से ही पता लग रहा है ना, DR नाम क्यों रखा है हमने, डेमोन्स्ट्रेटिंग. सो हमने लॉन्च किया है GSLV, वन थिंग. सेकंड है, अगर मुझे याद भी नहीं होते एग्जैक्टली 2211 और समथिंग, सो हम ये करेंगे, मार्क 2 का कैपेसिटी क्या है, बिटवीन 2000 एंड 2500. दैट मींस इट इज सही है, मैं कॉन्फिडेंटली मार्क कर सकता हूं क्योंकि पेपर सेटर 2231 के जगह 2311, सॉरी 2211 के जगह 2311 ऐसा थोड़ा चेंज करके नहीं देगा. इतना बुरा भी नहीं है पेपर सेटर. अगर देना होगा तो ना गलत ऐसा देखेगा, मे बी 3500 kg लाइक दैट. सो उस रेंज में है, मैं कॉन्फिडेंटली उसको टिक कर सकता हूं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो
आपको ये याद रखना है, आवर ओन जीएसएलवी के थ्रू ऐसा सैटेलाइट मार्क 2 हमने सिर्फ अभी टिल डेट आज तक का मतलब 8 मार्च तक मैं बात करूं, सो 2 सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किया। वन इज इनसैट 3DR एंड 2 दिन पहले दैट इज 5 मार्च को हमने लॉन्च किया साउथ एशिया सैटेलाइट, वे भी हमारा ओन लॉन्च व्हीकल कैरी किया है। उसका वेट भी बिटवीन 2000 एंड 2500 kg है। बस ये दोनों याद रखिए। पहले मैं ये अकेला बताया क्योंकि अभी एक और ऐड हुआ है साउथ एशिया सैटेलाइट विच इज नथिंग बट सार्क सैटेलाइट, जो पहले सार्क सैटेलाइट नाम दिया अब नाम चेंज किया, राइट? आर यू गेटिंग मी? सो यहां आंसर है फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है, सो वन ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये कॉलम में कैरियर रॉकेट्स पीएसएलवी का नंबर्स दिया है, बी में कॉलम अदर कॉलम में वे क्या किया है। ये सारे माइलस्टोन्स है, माइलस्टोन्स आपको याद होना चाहिए। का मतलब 2 माइलस्टोन्स है, 2 रीसेंट है। फॉर एग्जांपल एमओएम को नहीं भूलना चाहिए। मार्स ऑर्बिटर मिशन, यार भेजा ही एक मिशन, उसको भी हम भूल गया तो कैसा अच्छा नहीं लगेगा। आई एम एन इंडियन, आई डोंट डू दैट। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन फ्रॉम पीएसएलवी C-25 मुझे पक्का पता है, पीएसएलवी C-11 चंद्रयान, हम तो एक मून पे भेजा है, एक मार्स पे भेजा है, ये दोनों को भी भाई याद नहीं रख पाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? वे इसलिए दिया है 34, इसलिए 34-35 इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अगर आपको याद है 37 इसलिए याद रखा हमने क्योंकि 104 सैटेलाइट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। 36 में कोई स्पेशलिटी नहीं है, इसके थ्रू रिसोर्स सैट 2A गया है। 35 इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 8 सैटेलाइट्स इनटू 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स गया है। एंड 34 इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज it was record of India before 104 satellites. It took 20 satellites at a time. So hope you understand. ये सारे मैंने किया है, वीडियो में देख लीजिए। So PSLV one will go with B, one will go with B means this is wrong. Similarly, this is wrong. Then 2 will go with C. C, yeah. 2 will go with C means this is wrong. इसी से आंसर पता चलेगा। अदरवाइज आपको और भी चेक करके भी देख सकते हैं। 3 विल गो विथ ये, 3 विल गो विथ ये, 1 विल गो विथ बी, ये दोनों भी पता होगा तो आपका आंसर पता चलेगा। इतना तो ये दोनों तो याद रहना चाहिए कम से कम आपको। सो इसका आंसर है डी। नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। यू नीड टू रिमेंबर द माइलस्टोन्स। मैं ये नहीं बोल रहा था पीएसएलवी C-1 से लेके C-37 तक सारे याद रखो। अगर ऐसा याद रख रहे हैं आपको क्या बोलना चाहिए? मैं क्या बोलूं, मैं तो पागल बोलूंगा, राइट? ये बेसिक याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस हेल्प द गवर्नमेंट इन फिस्कल कंसोलिडेशन? पहले ये आप समझ लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है फिस्कल डेफिसिट को कम करना, और सिंपली बात करें गवर्नमेंट खर्चा कम करे और थोड़ा पैसा डेफिसिट को कम करे, दैट इज व्हाट इज फिस्कल कंसोलिडेशन। इस साल वे सर्वे में भी इसकी बात किया है, तो कीप दिस वर्ड इन माइंड। वैसा तो मैं किया है, वीडियो में है, राइट? सो फिस्कल कंसोलिडेशन मींस अपना एक्सपेंस कम करो, इनकम बढ़ाओ, अल्टीमेटली द आइडिया इज टू हैव सम मनी इन हैंड, राइट? So obviously if you see the first statement, reducing revenue expenditure, तो हाई revenue expenditure कम करो। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, अगर नया वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस करोगे और पैसा खर्च होगा तो ऑब्वियसली कंसोलिडेट कैसा करेंगे? ये उल्टा हो गया। रेशनलाइजिंग सब्सिडीज, यस सब्सिडीज को रेशनलाइज करो सो दैट बचाओ। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड कैसा करेंगे? करना होगा तो पैसा चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? वेरी बेसिक थिंग। सो ऑब्वियसली 1 and 3 करेगा तो फिस्कल कंसोलिडेशन होता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। Next question, an intense affirmative action of the government to boost economic activity in the country can be termed as, it's a direct question. So economic activity को boost करना चाहता है government, that is nothing but fiscal stimulus, है ना? Direct question. So answer is option C. Fiscal deficit is different, it's a debt deficit. Fiscal consolidation we have just seen. Fiscal cliff means after this stimulating the economy, then you know again tax rate बढ़ जाता है, then public spending कम होता है, then the people will have less money with them. That situation is fiscal cliff. So here answer is C. Very direct question, easy question. Next question, consider the following: Cassini, Rosetta, Hubble. Which of the above is our spacecrafts? You remember Cassini, Huygens,
Rosetta, Philae, these two are spacecrafts, but Hubble was a telescope, right? Hubble telescope. So the answer is 1 and 2 only. Again very direct question, broad natured question. आपने नाम तक सुना भी होता है तो आपका काम चल जाएगा, right? Next question, what is NISAR, which was seen in news recently? Again direct question, you know what is NISAR? NASA ISRO synthetic aperture radar. Not at launch, planning, right? So ISRO and NASA मिलके कर रहा है. First option देखिए, it is a neutrino observatory being jointly developed by India, South Africa and Russia. बकवास. B, it is a satellite planned to be launched by ISRO to observe the greenhouse gases in the atmosphere. Nonsense. C, it is an air quality research program jointly handled by India and UK recently. Nonsense. It is a dual frequency synthetic aperture radar satellite planned to be launched by ISRO and NASA. This is the answer. What I am saying, such silly questions also come in the exam. अगर आप निसार क्या कभी सुना भी नहीं होगा तो then you cannot answer. But सुना तो बेसिक भी सुना होगा तो आपको कितना अजीब का ऑप्शंस देके easily you can identify. मैं ये चाहता हूँ आपको ये समझाना चाहता हूँ. Just understand all the terms, all the news in this way. No need to go deep into this. अगर एक दो क्वेश्चन डीप में आता है तो वे डिफरेंट क्वेश्चंस है, वे भी हमने देख लिया, right? So next question, consider the following. Pong Dam. Pong Dam was built on, Byas River. So, confluence of Satluj and Byas. Confluence of Satluj and Byas पे हारिके लेक है. Pong Dam is not at the confluence. So, गलत है. Keladiyo, confluence of Chambal and Banganga. Keladiyo नहीं है confluence of Chambal and Banganga पे. You remember that Ranthambore National Park? वे है. Kolleru has nothing to do with Krishna River. So it is at confluence of Musi and Krishna. ये भी गलत है. So एक भी सही नहीं है. All are incorrectly matched. So which of the following are correct? Which of the above are correctly matched? None of them. Next, 19th question. Consider the following statements. The state with the lowest percentage of geographical area under wetlands is Manipur. You remember? The state with highest geographical area under wetlands is Gujarat and the lowest area is Mizoram. Even percentage मैंने बोला percentage याद रखने की जरूरत नहीं है, like around 16%, 16 point something percentage for Gujarat and about 0.66% for Mizoram. That was the lowest, not Manipur. So this statement is wrong. Second, the largest saline wetland is in Rajasthan. Largest inland wetland is in Rajasthan. I accept. वे saline भी है, ये जो सांबार लेक है, largest inland wetland which is saline also. But how largest saline wetland राजस्थान में होता है? क्योंकि चिल्का लेक है ना जो ओडिशा में, that is coastal wetland, but that is also saline wetland. That is the largest. Are you getting? So the largest saline wetland is not in Rajasthan, it is in Odisha. So ये भी गलत है. So आपका आंसर है neither one nor two. You need clarity. Easy questions है, ऐसा confuse करेगा. That's why you need to remember the information in a proper way. So instead of digging more deep into the information, आप basics को बार बार याद रखने का time spend करिए. That is what I am again and again trying to tell you. And the last question, which of the following pair is are correctly matched? New Horizons. You remember New Horizons? Pluto चरण पे है, वहां से कूपर बेल्ट को स्टडी कर रहा है. न्यू हॉरिजन्स, ये मार्स पे नहीं है. मार्स पे सिर्फ दो याद रखिए, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन एंड टीजीओ ट्रेस गैस ऑर्बिटर विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड. सो ये गलत है. न्यू हॉरिजन्स प्लूटो एंड ये जो कूपर बेल्ट पे घूम रहा है. डॉन अभी सरस पे, ये सही है. अगर आपको डाउट है तो मेन वीडियो या समरी वीडियो को बार बार देखिए, सो दैट ऐसा बेसिक्स आप आप 100 चीज पढ़ रहे हैं लेकिन जो 10 चीज इंपॉर्टेंट है वे जब जरूरत पड़ रहा है तब याद नहीं रहा आपको, तो पढ़ के फायदा क्या. इसलिए 100 चीज पढ़ना बंद करिए. जो चाहिए आपको एग्जाम में आता है वे समझने का, याद रखने का, उसको होल्ड करने पे आपका टाइम लगाइए. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज माय वीडियोस. दैट्स व्हाई आई टुक दिस इनिशिएटिव आपके लिए. एंड वुसरिस क्या है? इट इज एक्चुअली टू बेन्नू, एस्ट्रॉइड बेन्नू. वे वापस सैंपल मिशन है, सैंपल रिटर्न मिशन, वे वापस लेके आया. पढ़ा ना? वीनस पे नहीं है. सो सेकंड इज ओनली करेक्टली मैच्ड. आंसर इज बी. So these are 20 questions. If you see carefully, not very difficult questions, but आप basic information retain नहीं कर पाया, एग्जाम में जाके आपको जो पढ़ा है लेकिन याद नहीं आया एग्जाम में, तो क्या करेंगे बताइए. तो इसलिए आपको क्या करना है, समरी वीडियो को 4-5 बार बार देखिए, then take a white paper, what all you have done,
फटाफट एक बार व्हाइट पेपर पे खुद लिख लीजिए. डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम बाय राइटिंग इन ए वेरी फेयर वे. नो नीड टू राइट इन फेयर मैनर. जस्ट राइट लाइक दैट. टिश्यू पेपर भी मिलता है आपको. रेस्टोरेंट में बैठा है, ऑर्डर किया, खाना आने में 10 मिनट टाइम लग रहा है, फटाफट एक टिश्यू पेपर निकालिए और फटाफट जो भी एक टॉपिक सोच के उसका फटाफट जो भी आप जानते हैं फटाफट लिख लीजिए उस पर. इन योर लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज. नो नीड टू राइट द कंप्लीट फेयर लैंग्वेज. आप अपना तरफ से लिख लीजिए. ये जितना बार बार करेंगे उतना फायदा है आपको. कम से कम 4-5 बार ऐसा आपको लिखना चाहिए, तभी हर चीज आपको याद आएगा. याद का मतलब एग्जैक्टली मगअप नहीं, कहीं तो कहीं. मार्स फॉर एग्जांपल, न्यू हॉरिजॉन्स मार्स. मुझे एग्जैक्टली मार्स या जुपिटर ये याद आने की जरूरत नहीं. मुझे इतना भी बताए ना न्यू हॉरिजॉन्स कहीं आउटर सोलर सिस्टम में घूम रहा है, इतना भी मुझे स्ट्राइक होता है ना. लाइक ये प्लूटो ये भी नहीं आते. मार्स में TGO एंड जो अभी क्या है मंगलयान, यही मुझे मार्स की रिलेटेड बता है. न्यू हॉरिजॉन्स मैं कहीं और पढ़ा हूं, इतना भी स्ट्राइक होता है, आपका आंसर कम हो जाता है ना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. गेटिंग मी? अदरवाइज दिस इज वेरी नॉट डिफिकल्ट एग्जाम. आप आराम से ये 1-2 क्वेश्चन, चलो मैं मानता हूं आप स्किप कर लीजिए. सो बट इवन 4 क्वेश्चन स्किप कर लीजिए, 16 क्वेश्चन आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड 16 में से एक गलत होगा, मैं मानता हूं. 2, 3, 4, 2 तक ठीक है, बट 4 गलत 16 में मीनिंगलेस. अगर 16 में ही 4 गलत हो गया तो आपका बहुत कम ये था, सक्सेस रेट था, एक्यूरेसी है. सो यू नीड टू इंप्रूव. सो माय आइडियल स्कोर इज अटेम्प्ट 16, आउट ऑफ देम 1 रॉन्ग. दैट मीन्स 15 करेक्ट, 1 रॉन्ग इज द बेस्ट. और 14 करेक्ट, 2 रॉन्ग इज ओके. इससे ज्यादा नहीं गिरना नीचे. होप यू अंडरस्टैंड. टेस्ट 1, डे 1 का टेस्ट. लेट्स मीट विद अनदर टेस्ट. ओके, थैंक यू वेरी मच.